My name is Dr. Ankit Patawari and I am a rheumatologist. So today I am going to speak on a disease which is a very rare disease but is very much found in this part of the country. And this disease is known as systemic lupus erythematosus. We call this lupus or SLE. So basically this is a multi-system disease that it can go to any system of the body. So normally we can have some disease which involves the heart. So we go to a cardiologist. Some disease involves the kidneys, we go to a nephrologist. So lupus is an autoimmune disease which can go to any system of the body and it can cause the significant of the findings in that system. So basically it has to be dealt by a immunologist or a rheumatologist. So it can go in the skin and cause some rash in the face which is called as malar rash, or patient have photosensitivity. Similarly, it can go to the musculoskeletal part, it can cause joint pain or joint problems or some stiffness or arthritis, or it can cause even muscle weakness or myositis. It can go to the kidneys and cause swelling of the legs or puffiness of the face. The whole body gets swelled up. Or there can be some photiuria or dysuria, or there's some increased frequency of urine problem. And if you look into the urine test for these patients, what we found is this leakage of protein from the kidneys. So this is how we get to know that the patient might have kidney involvement because of lupus, which is known as lupus nephritis. And if we suspect it, we may have to plan for a kidney biopsy to exactly evaluate the nephritis part. So this is a disease which mainly affects females. So females, especially of the reproductive age group, suffer from this disease. The age group for this disease is 15 to 45 years, but again it can be found in various ages. Once we diagnose lupus, we have normally diagnosed by a simple blood test which is known as anti-nuclear antibody test or a ANA test. So ANA can be found positive in many other diseases, but remember all patients of lupus has to have ANA positivity before diagnosing as lupus. So once we diagnose lupus, we have to look for different system involvement, and thereafter we accordingly give some medicines. So some medicines are there which we give to the lupus patient's entire life, like hydroxychloroquine, and we always tell them to avoid the sun exposure, ultraviolet rays. And again, depending on which system is involved, we accordingly modify our treatment. So if anyone is suffering from this type of symptoms like joint pain, skin rash, multi-system problem, young girl, 15 to 45 years of age, immediately we should consult our rheumatologist to get early diagnosis, and we can do a very long follow-up with them and give them a very good treatment. Thank you. आज हम लोग एक बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर बात बिक। ये अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, कोई इसे गठिया बोलते हैं, कोई इसे बात बिक को बोलते हैं, कोई इसे आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये एक ही बीमारी का अलग अलग नाम होता है या फिर उसको वैसे जानते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, इंसान के जोड़ों में दर्द आ सकता है और वो किसी की भी हालांकि आ सकता है। बट कभी भी क्या होता है, जोड़ों में क्या होता है, इतना दर्द ज़्यादा हो जाता है या फिर वो जोड़े सूजने लग जाते हैं या फिर स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी जब इंसान सुबह उठता है तो उसका स्टिफनेस आ सकता है। तो नॉर्मली वो स्टिफनेस 30 मिनट से कम रहता है। बट जिस इंसान को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, गठिया बीमारी या फिर बात बीमारी, जो भी इन्हें आप बोलें, उस बीमारी में वो इंसान का क्या होता है, सुबह उठने में जकड़न रहता है और वो जकड़न आधा घंटे से ज़्यादा रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जो 30 मिनट्स के ऊपर रह रही है उसको। जैसे दिन जाता है उसका जॉइंट्स में सूजन कमती है तो वो नॉर्मल काम करने लग जाता है, और ठंड जैसी आती है, ठंड के टाइम में ये सब गठिया बढ़ जाती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा महिला में ज़्यादा देखी जाती है। इसे कुछ रिस्क फैक्टर्स है। एक रिस्क फैक्टर जेनेटिक भी है कि वो गठिया फैमिली में हो सकती है। दूसरा कुछ एक रिस्क फैक्टर होता है, कुछ इन्फेक्शन के बाद किसी को गठिया हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इंसान स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता हो, धूम्रपान के बाद भी गठिया लक्षण देखे जा सकते हैं। तो इसे हम लोग का कोई क्योर नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होता है तो हम लोग को जल्दी इस बीमारी को पकड़ना है। इसके लक्षण जैसे मैंने बताए, हाथों में दर्द आना, सूजना, दोनों हाथ एक साथ पकड़ना और सुबह में ज़्यादा होना, और जैसे दिन जाता है वैसे ही वो चीज़ कम जाती है। वो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे रूमेटॉइड फैक्टर या फिर एंटीसीसिव ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे हम इस बीमारी को लेबल कर सकते हैं कि लाइक अगर किसका ये रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो हम लोग उसको सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं कि उनका बीमारी गठिया है, जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से बोल रहे हैं, और उसमें ये एंटीबॉडी पॉजिटिव पाया जाता है। ये रूमेटॉइड फैक्टर या एंटीसीसिव जो टेस्ट होते हैं वो लाइफ में एक ही बार किए जाते हैं, ये कोई रिपीट नहीं करते।
और जब जब इंसान के जॉइंट्स में पानी होते हैं तो वो हम दूसरे टेस्ट से पकड़ सकते हैं, जैसे ESR और CRP बोल के होते हैं। गठिया का कोई क्योर नहीं है, बट ये रूमेटॉइड जो बीमारी होती है, जो हम कुछ एक दवाई दे सकते हैं जिसको हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं, जो इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। और ज़्यादा होने से हालांकि हम लोग के पास कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, कुछ नई नई दवाई भी निकली है जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इलाज इसका नहीं करवाते हैं तो ये बीमारी आपके दूसरे जॉइंट्स में या फिर दूसरे सिस्टम में भी जा सकते हैं, लाइक लंग्स में जा सकते हैं या फिर आँख में भी जा सकती है। और अगर इलाज सही से नहीं होता है तो आदमी लोग के जॉइंट्स खराब भी हो जाते हैं और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को रूमेटॉइडिस सस्पेक्ट है या फिर आर्थराइटिस हम लोग सोच रहे हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए या फिर आपका नियरेस्ट जो भी रूमेटोलॉजिस्ट है उसको दिखाइए और इसका बीमारी को पकड़ के इसका जल्दी से इसका इलाज करवाइए।